السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھنا کیسا ہے۔ کیا بغیر ٹوپی کی نماز نہیں ہوتی ہے، یا بغیر ٹوپی کی نماز پڑھنے والا گناہ گار ہوگا؟ تو کیا معاملات ہیں، اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے حناف کی مسجدوں کے اندر جو ہے ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں، پلاسٹک کی ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں، جو کہ نماز پڑھنے کے دوران ہی وہ نکل کے گر رہی ہوتی ہیں بار بار۔ اور تو حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے اس کی، کیا معاملات ہیں اس کے، اگر کوئی ٹوپی کے بغیر نماز پڑھتا ہے یا ٹوپی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم موقف لیتے ہیں مفتی اکمل صاحب کا، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ ایک انہوں نے کویشچن کیا کہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا فرض ہے یا واجب؟ ٹوپی کے بغیر نماز صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، ہمارے یہاں ادب اور عرف یہی ہے کہ ٹوپی پہن کر نماز ادا کی جائے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر بچے نماز پڑھنے لگتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں بیٹا ٹوپی پہنو، کوئی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہا ہو تو عجیب سا لگتا ہے یہ، لیکن ہمارے عرف اور عادت کے اعتبار سے ہے۔ مطالبہ شرع ہرگز نہیں ہے کہ سر ڈھک کر نماز پڑھا جائے، یہ شریعت کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے، یعنی فرض یا واجب تو نہیں ہے، لیکن جب کوئی ایک چیز ماحول بن جاتی ہے، ایک عادت میں شامل ہو جاتی ہے، اس کے خلاف چلنا مکروہ اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ لوگ پھر غیبت کرتے ہیں، طعنہ زنی کریں گے اور بدگمانیاں دل میں پیدا ہوں گی، تو لہٰذا بہتر ہے کہ ٹوپی پہن کر نماز ادا کی جائے، لیکن اس کی شرعی حیثیت زیادہ سے زیادہ مستحب کی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی نے برہنہ سر نماز پڑھی تو نماز بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، یہاں تک لیکن فقہاء نے ضرور لکھا ہے کہ اگر کسی کے سر میں کوئی بیماری ہے اور وہ ٹوپی پہنے تو بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے یا حرج میں پڑ رہا ہے، تو پھر برہنہ سر نماز پڑھنا افضل ہے۔ مثال کے طور پہ شدید ترین گرمی ہے اور کسی نے ہلکا سا پنکھا چل رہا ہے، تیز نہیں چل رہا، اور کھجلی انتہائی شدید قسم کی ہو رہی ہے، اگر وہ ٹوپی پہنتا ہے تو اور بڑھ جاتی ہے اور خشوع و خضوع ختم، اور بار بار سر کھجانے کو دل چاہتا ہے، جس سے نماز کے فساد کا خوف پیدا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں تو پھر برہنہ سر نماز پڑھنا افضل ہوگا۔ اس لیے افراط و تفریط سے بچیں، صحیح مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بالکل صحیح۔ دوستو، آپ نے مفتی اکمل صاحب کا موقف سن لیا۔ انہوں نے کہا کہ فرض یا واجب نہیں ہے ٹوپی لگانا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ سر ڈھانپ کے رکھتے تھے ہمیشہ ہی، اور صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ ان کا بھی سر ڈھکا رہتا تھا۔ تو اس طرح کے معاملات میں اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے سر کی، اگر کوئی بیماری اگر آپ کے ہے، کھجلی کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے سر کے لیے، مطلب آپ کو خشوع اور خضوع نہیں آ رہا نماز کے اندر اور سر کے اندر ہی آپ کھجائے جا رہے ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں، تو افضل یہ آپ کے لیے یہی ہے کہ بغیر ٹوپی کے آپ نماز پڑھیں۔ یہ موقف آپ کے سامنے مفتی اکمل صاحب نے رکھ دیا۔ آگے چلتے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنا خلاف، بولو بھائی جب اسٹارٹ ہو جائے تو بتا دینا۔ سٹارٹ ہے مفتی صاحب؟ جائز ہے بالکل، نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ بغیر ٹوپی کے پڑھ لیں، مگر کیا جاتا کیا ایک ٹوپی سر پہ رکھنے، بہت اسٹائلش بننا ہے ان کو تو زلفیں آگے ڈال لیں یوں گھما کے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بالوں کے ذریعے زینت دی ہے، کیونکہ بڑا مسئلہ ہے خواتین بال چھوٹے کرانے لگی ہیں۔ ارے بالوں میں اللہ نے آپ کو لمبے بال دیے اس لیے کہ اس میں حسن ہے، خوبصورتی۔ آدمی کو کیوں نہیں دیکھی اللہ نے؟ دیکھو، اللہ نے عورت کو جب خوبصورتی دی نا، ایک حسن دیا ہے، کوٹ بن چکے ہیں، حالانکہ وہ 45 کا ہوگا، 50 کا ہوگا۔ خواتین کے بال بڑھاپے میں بھی کم تو ہو جاتے ہیں مگر ختم نہیں ہوتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بالوں کا خواتین کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہے، یہ نیچر نہیں رکھا، اس کو کاٹ کے فطرت کو تبدیل مت کرو، اس میں حسن ہے۔ ہاں، آپ خاندانی آواز ہے، جب شروع ہو جائے بتا دینا، جب واقعی شروع ہو تو بتانا۔ ہاں، کئی دفعہ ایسے ہو میں نے کہا شروع ہو جائے، جب میں نے جا کے بیان سنا تو شروع کا 10 منٹ کا ہے ہی، اس لیے جلدی بھی کر دینا۔ یہ لوگ، ان کو پیسے نہیں دینے، ہم نے کرائے پہ تھوڑی بٹھائے ہوئے ہیں۔ تو ٹوپی کے بغیر نماز نہ پڑھا کریں، اللہ کے بندو، بہتر ہے ٹوپی پہنا کریں، سنت کے مطابق نماز پڑھا کے کیا کریں۔ واش روم جانے سے پہلے بھی سر کو ڈھانپنا افضل ہے، صحیح ہے نا۔
कोशिश तो करनी चाहिए 24 घंटे सर ढका रहे, बस सोने के वक्त या ऐसे ही कहीं फ्री स्टाइल में बैठे तो सर नंगा कर लें, लेकिन मुसलमानों में हमेशा से सर क्या हुआ करता था, ढका रहता। देखो आज भी यहूदी अपना सर ढांक के रखते हैं, जो मजहबी यहूदी हैं, छोटी छोटी कैप पहनते हैं, वो अफजल है लेकिन फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। लोग पहले ही दीन से इतनी दूर हैं, कह रहे हैं और मुश्किलात में, तो बड़े बड़े कबीरा गुनाह भी छोड़ दें तो गनीमत है। सर पे बेशक टोपी ना भी हो, अफजल है पहन लें, नहीं हो तो कितना गुनाह नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सो दोस्तों आपने तारिक मुस्लिम साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि अफजल है कि टोपी पहनी जाए, कि हर लम्हे आप जो है टोपी पहन के रखें, लेकिन फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है, तो इस तरह के मामला नहीं है। अगर कोई नहीं भी पहनता तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया। आगे चलते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। और इससे ये जो रिजल्ट गलत निकालते हैं जी, रफुल हिदायत छूट जाए तो सईदा साहब कोई नहीं है, तो ये भी मसला ये है कि छूट जाना और चीज है और छोड़ देना और चीज है, ठीक है ना। ये दो चीजें अलग है कि आप छोड़ देना। दूसरी तरफ तो इन्होंने अहले हदीसों की नाक में दम किया होता है टोपी पा के नमाज नहीं पढ़ते, हालांकि फिक़ह हनफी में भी फतवा है कि नंगे सर नमाज दुरुस्त है। हम भी कहते हैं दुरुस्त है, सिर्फ हम ये कहते हैं कि अफजल ये है कि सर ढांपा जाए, नमाज का हिस्सा नहीं है। कब हमने कहा, हम तो हमेशा ये कहते हैं कि तरगीब दिलाई है, नमाज का हिस्सा तो नहीं है, ठीक है। और वहां जो है वो अहले हदीस के पीछे पंजे झाड़ के पड़े होते हैं जी, देखें जी नंगे सर नमाज पढ़ देने, नंगे सर नमाज पढ़ देने। तो भाई थोड़े अहमद बरेलवी साहब ने फतवा रिज़वी अहकाम शरीयत में लिखा है कि जिसको नंगे सर नमाज पढ़ने में मजा आता हो उसके लिए वाजिब है कि नंगे सर नमाज पढ़े। चलो वो तो नंगे सर पढ़ने को वाजिब कह रहे हैं, ठीक है। और इधर जो आप मसला देखें, इधर कहना नहीं रफा सुन्नत ये छोड़ता रहे क्या, तो भाई फिर एक कसूर रखो ना, बेईमानी की हुई है ना। उधर वो करते हैं, इधर ये करते हैं। और मैं वो अगले दिन एक मौलवी साहब को सुन रहा था सऊदी अरब के, मैं नाम नहीं लेता फिर पर्सनल हो जाएगा, वो मैं उसको कहता हूँ वो बेचारा स्पीकर है, वो कोई मुहक्किक या आलिम तो है नहीं है, एक स्पीकर है, स्पीकर है तकरीर करने वाले, जैसे स्पीकर है बेचारा, उसकी इतनी अकल तो नहीं, जो बोल रहा हूँ मैं वही बोलता जा रहा है, ठीक है। स्पीकर इंग्लिश वाला भी है, स्पीकर भी है, तो वो इस तरह के वो कहता है जी वो हिस्सा नहीं है। वो कौन कहता भाई हिस्सा है, हम तो सिर्फ कहते हैं तरगीब दिलाओ सुन्नत की, ना कि सुन्नत से नफरत की। और फिर हदीसें भी जाली तरीके से बयान करते हैं। वो बुखारी से जो हदीस बयान करते हैं इब्न अब्बास की, कि उन्होंने रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा पूरी हदीस बयान करे तो इनको शर्म नहीं आती, पूरी हदीस क्यों नहीं बयान करते सही बुखारी से। वो तो नंगे सर पढ़ने वालों के खिलाफ है वो हदीस जो ये पेश करते हैं। इब्न अब्बास नमाज पढ़ने के लिए आए मस्जिद में, उन्होंने पगड़ी उतार के अपनी सामने रखी, करूं पास काट के चीर काट के नंगे सिर नहीं आए मस्जिद, पगड़ी बांध के आए सब, पॉइंट टू बी नोटेड, पहली चीज, ठीक है। और आगे सामने पगड़ी रखी, नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, तो वो जो साथी थे उन्होंने पूछा आपने ये अमल क्या क्या किया, ये आपने क्या किया, तो उन्होंने फरमाया मैंने तुम जाहिलों को ये बताने के लिए किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हमारे पास इतना कपड़ा ही नहीं होता था, हम में से कोई एक शख्स एक चादर में भी नमाज पढ़ लिया करता था। यानी कहीं ये ना तुम समझ लो कि ये कुर्ता पहनना या पगड़ी पहनना ये कोई फर्ज सत्र में दाखिल है, एक चादर में भी नमाज पढ़ लिया करता था। वो तो अपनी गुर्बत बता रहे थे कि एटलीस्ट ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छा वो जो इधर इर्द गिर्द बैठे तो बरेलवी जो बंदी थे क्या, कम अज कम सहाबा या ताबीन तो होंगे, और उन्होंने जो उनको मायूब समझा, क्यों समझा, इसका मतलब है सहाबा कराम नंगे सर नमाजें नहीं पढ़ते थे। अगर ये आम अमल होता तो बड़े खुश होते, जनाब तुसी तो वही काम कर रहे हो जो सारे करते थे। वो इतराज करने वाले बरेलवी तो बंदी थे क्या, सहाबा ताबीन थे ना। इसका मतलब है कि उन्होंने देखा था कि यार ऐसे नहीं कोई करता, ठीक है। सही बुखारी में हदीस है एहराम की हालत में अपनी पगड़ियां उतार दो, टोपियां उतार दो, रुमाल उतार दो, तो यानी सहाबा पहनते थे तभी उतरवाया गया ना। कैसे गलत रिजल्ट निकालते हैं, बेईमानियां करते हैं, दाढ़ियां रखी हुई और झूठ बोलते हैं, पब्लिक को पूरी दिशा क्यों नहीं बताते, अपने घाटे फिट होंगी ता वास्ते। किसने खोल के बुखारी पढ़नी होता है, घाटे मौलवी साहब ने कह देता वजह ही काफी है, पूरी बात बताओ तुम्हारे घाटे फिट होगी वो। तो वो इस तरीके से उन्होंने अपना इजहार किया, वो इतराज करने वाले आम लोग नहीं थे। सो दोस्तों आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया कि वो भी जो है हनफी हज़रात भी जो है इस तरह के मामला रखते हैं कि टोपी के बगैर, मतलब ज़्यादा तरगीब दिलाते हैं कि टोपी की, और अहले हदीस के वहाँ भी जो है टोपी की जो है हदीसें पेश करते हैं। वो कह रहे हैं कि सही बुखारी की आधी हदीसें पेश करते हैं। बहरहाल उनका मौक़िफ़ तो आपके सामने पेश कर दिया। आगे चलते हैं, एडवोकेट फैज़ सईद साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। फैज़ भाई आपने कहा है कि टोपी पहन सर ढाकना सुन्नत है, और एक मस्जिद में शहर के हमने नमाज़ पढ़ी जहाँ पे लिखा हुआ था कि बरहाना सर नमाज पढ़ना सख्त मना है,
तो इसके कारण भाई ने एक सवाल किया कि मैंने कहा कि टोपी मतलब सर ढाकना सुन्नत है, तो अब वो कुछ लोग टोपी से, कुछ लोग रुमाल से ढाकते हैं, लेकिन एक जगह उन्होंने देखा था कि एक जगह मस्जिद में हो गए जहाँ लिखा हुआ था कि बगैर सर ढाके मतलब टोपी पहने नमाज पढ़ना सख्त गुनाह है, गलत है। तो बहरहाल ये सर ढाकना ये सुन्नत है, ये नमाज के वाजिबात में से नहीं है, याद रखिए, बात जहन में होना चाहिए। जिसके नतीजे में ये होता है कि दो फरीक इसको इतना अशद लेते हैं, और ये बात हम भी जानते हैं कि इस्लाम की हकीकी रूह को छोड़कर चंद ज़ाहिरी चीज़ों को और कल्चरल इम्पैक्ट को इतना लिया गया कि कल्चर इस्लाम बन गया और इस्लाम कल्चर बन गया। समझ रहा, मतलब हमारे रसूमात इस्लाम बन गए और हकीकत जो इस्लाम था वो किसी ज़माने की चीज़ बन गई कि कोई करता था, यहाँ नहीं, ये नहीं चलता। उसी का नतीजा ये है कि इफरात और तफरीद के हम शिकार हैं टोपी के मामले में, जिसमें एक फरीक का ये दावा है कि टोपी के बगैर नमाज नहीं होती। इस हद तक भी चले गए कि एक मस्जिद में एक चार्ट लगा हुआ था, उस चार्ट पे ये लिखा हुआ था, आप ताज्जुब करेंगे, जिससे मैंने भी ताज्जुब किया, इमाम साहब से पूछा तो भाग गए वहाँ से नमाज पढ़ाते ही, वो मेरी बात का जवाब ना दिया। मैंने वहाँ लिखा था टोपी कुछ हालत में नमाज में ना पहनना कुफ्र तक ले जाता है, टोपी कुछ हालत में नमाज में ना पहनना कुफ्र तक ले जाता है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, तो मैंने उनसे जाके पूछा अगर टोपी कुछ हालत में नमाज में ना पहनना कुफ्र तक ले जाता है तो नमाज को बगैर दाढ़ी के पढ़ना कहाँ तक ले जाता है? वाकई नमाज के बाद जवाब नहीं दिया मेरा, मतलब अमेजिंग सिचुएशन थी। कुफ्र मतलब आप समझ रहे, आप किस चीज पे कह रहे, तो दोनों फरीक ने इफराद और तफरीद के शिकार हो गए। मतलब एक वो लिमिट्स पर चले गए कि कुफ्र टोपी ना पहने तो नमाज ही नहीं होती। तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो माहौल नहीं है, लेकिन आज भी गांव में ऐसा माहौल मैंने देखा है, लोग मस्जिद जाते टोपी अगर नहीं है उनके पास और वहां मस्जिद की टोपी नहीं है तो नमाज चल रही है और मस्जिद से चले जाते हो। अब उनसे मुझे क्यों, वो टोपी नहीं है, तो दूसरा भी अरे टोपी नहीं है क्या, ठीक है फिर चल जाओ तुम। पर टोपी इतना जरूरी हो गया कि नमाज नहीं हो रही है, कुफ्र तक चला जा रहा है, ठीक है। और एक तरफ ये भी जो है इफरात और तफरीद के शिकार है कि हम बगैर टोपी की नमाज पढ़ते, तो पूरी मस्जिद बगैर टोपी की, ये भी दुरुस्त नहीं। इसलिए कि अखलाक नबवी में से ये चीज शामिल थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ही सर ढकते थे, हमेशा। नमाज, रोजा, ज़कात, बैठते, चलते फिरते, बाजारों में, खेत में, खलियान में, काम हमेशा ढकते थे। और सहाबा और सलफ सालिहीन की ये तरीका रहा उनका कि जो शख्स सर नहीं ढकता था उसको अपना तलामी स्टूडेंट कबूल नहीं करते थे। इसलिए कि सर ढकना ये बड़ी अहम चीज। अब बहुत सारे लोग आते हैं, नहीं हर कल्चर का एक तरीका होता है। एक साहब मुझसे बहस करने लगे, टोपी कल्चर है, बोले सर ढकना आसलम के जमाने कल्चर था। मैंने कहा ये बात आपने मेरे सामने बोल दी, किसी और के सामने मत बोलिए। फिर तो कल आप बोलेंगे दाढ़ी भी कल्चर था अरबों का, फिर आप बाद में बोलेंगे लिबास भी अरबों कल्चर था कि टखने से ऊंचा पहनते थे, फिर आप ये भी बोलेंगे, तो हर चीज फिर कल्चर में चले जाएंगे। आप समझिए सुन्नत पूरी कल्चर में निकल जाएंगे। वैसा नहीं होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अमल किया वो आइन सुन्नत है और क़यामत तक के लिए उसका मुकाम वही रहेगा, चाहे वो अरबों का कल्चर था या नहीं था। कुछ चीजें आपने बिल्कुल कल्चर के मुताबिक जो अरबों में तरीका था कुछ को नहीं किया। आपने हज के लिए शुरुआत की वहीं से मीकात बांधी जहां से अरब बांधते थे दौरे जालत में, लेकिन आपने, हालांकि वो कल्चरल पार्ट था उनका, लिया चूंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही था आपने, लेकिन हज में कपड़े नहीं उतारे जो कि अरब नंगे होकर करते, चूंकि वन इस्लामिक था। समझिया? तो आप क्या बोलेंगे, नहीं वहां से निकलना कल्चर नहीं, अब सुन्नत है, वहीं से हज को आप निकलेंगे, वही उसकी मीकात होंगे। उससे पहले या उसके बाद में आप करेंगे तो सूर्य हज बराबर नहीं होगा। मतलब ihram बांध के आपको मीकात से पहले जाना है ना, गुस्ल लेके वो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो लिहाजा अशद दोनों फरीक एकदम शिद्दत इख्तियार, एक तो कुफ्र और नमाजी नहीं होती, और दूसरे ये कि हमेशा नहीं पहनना चाहिए। मैं ये कहता हूँ हिंदुस्तानी माहौल को आप जहन में रखिए, और एक दाई बहुत सेंसिबल होता है और अक्ल से काम लेता है और अपने फायदे का काम करता है हमेशा, दुनिया के लिए और आखिरत के लिए, है ना? बिल्कुल सही। तो देखिए एक शख्स है जिसको मैं इतनी सारी बातें जो दर्स मैंने अब तक लिया, यही लिबास में सिर्फ टोपी उतार के बयान करूं तो मेरी दर्स का स्टार्ट होंगी ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह जाहिल टोपी नहीं, उसको क्या सिखाएंगे दीन मेरे को, खत्म हो गया। ऐसा ही है। सो दोस्तों आपके सामने सारे उलमा कराम का मौक़िफ़ पेश कर दिया, और मकसद ये होता है पेश करने का कि उसके ज़रिए आप हक बात तक पहुंच सकें जो उलमा कराम आपके सामने बयान करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर जो हमें पता चला वो यही है कि अफजल यही है कि आप जो है सर को ढाँप के रखें और नमाज़ पढ़ते हुए भी सर पे टोपी लगाएं। और अगर किसी को मसला है सर की बीमारी का या बालों झड़ने का मसला है, टोपी से बाल झड़ने लग जाते हैं, या कोई बीमारी है, कोई जड़ों में तकलीफ़ हो जाती है या खुजली का मसला हो जाता है, तो उसके लिए अफजल एक बगैर टोपी के ही नमाज़ पढ़े। लेकिन सब
को तो नहीं होती बीमारी, नॉर्मल कुछ अफराद होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर होती है। जैसे कि मेरे सर के लिए जो मसला है, दाढ़ी का जो मसला है, मेरी दाढ़ी नहीं आती, मेरा मसला थोड़ा डिफरेंट है, एलोपेशिया का मसला है, इसलिए मैं जो है टोपी वगैरह नहीं लगाता हूँ सर पे। तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर और अफजल अमल यही है कि मैं टोपी ना लगाऊँ, क्योंकि मेरे सर में जो है बीमारी है, एलोपेशिया अरीटा है मेरे साथ। तो बहरहाल आज की वीडियो में आपको सारी चीज़ें वाज़ेह तौर पे बता दी गई हैं कि सुन्नत अमल यही है कि सर ढाँप के आप नमाज़ पढ़ें। हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर ढाँप पे रखते थे, और सहाबा किराम भी का भी सर जो है ढपा रहता था, हर वक्त टोपी लगी रहती थी या इमामा वगैरह जो भी मामला थे उस दौर के हिसाब से। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारी में शामिल हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू